मुझे पढ़ना लिखना है, इल्म की राह पर हमको यूं ही चलना है। I love the educators, I love the educators, I love the educators. The best thing I could manage was a swan of fruit box mounted on a frame of fence paling, with drearily silent rubber wheels taken off an old pram. What is he saying here? कि सबसे बेहतरीन जो कि मैं इंतज़ाम कर सकता था वो ये था, एक छोटे से फल वाला डब्बा था जो कि लकड़ी के डंडों की बाड़ के फ्रेम पर नस्ब था, और वो खामोश रबड़ के पहिए जो एक पुरानी बच्चा गाड़ी से उतारे गए थे। एक्चुअली स्टूडेंट्स, हियर प्रैम मीन्स ओल्ड प्रैम मीन्स एक पुरानी बच्चा गाड़ी। Now, the next, after school and at weekends, boys came from all over the district to race on the Sunbeam Avenue footpaths. स्कूल के बाद और हर वीकेंड पे लड़के आते थे पूरे ज़िले से मुकाबला करने सनबीम एवेन्यू के रस्तों पर। There would be 20 or 30 cars, 2/3 of them with ball race wheels. वहाँ पर तकरीबन 20 या 30 गाड़ियाँ थी जिनमें से 2/3 के जो पहिए थे वो बाल रेस के थे। The noise was indescribable. आवाज़ नाकाबिले बयां थी। There would be about half an hour's racing before the police came. वहाँ पर तकरीबन आधे घंटे का मुकाबला हो चुका होगा जब पुलिस पहुंची। Residents often took the law into their own hands, horsing the grim-faced riders as they went shrieking by. वहाँ के मकीन अक्सर कानून को अपने हाथ में ले लेते, पानी पिलाते वक्त पिलाते हुए उन गमगीन चेहरों वाले सवारों को जब वो चीखते हुए उनके नज़दीक से गुजरते। Students, the word horsing, there are several meanings for this word. Horsing also means to attack. Horsing also means to give water or to spray water. So, any meaning can be used here. Both are correct. Now, this is the paragraph number 1. In paragraph number 1, the writer is explaining about the race, how it was taking place there. Now, we will go towards the paragraph number 2. Sunbeam Avenue ran parallel to the Margaret Street, but it started higher and lasted longer. Sunbeam Avenue और Margaret Street का फासला एक ही जितना था, लेकिन ये पहले शुरू हुई और ज़्यादा देर तक जारी रही। यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? रेस के बारे में। Cars racing down the footpath on the far side had a straight run of about a quarter of a mile all the way to the park. दूर दराज तक फुटपाथ पर दौड़ने वाली गाड़ियां तकरीबन 1/4 मील की सीधी दौड़ में थीं पार्क की तरफ। Cars racing down the footpath on the near side could go only half as far, although very nearly as fast, before being forced with a right-angled turn into Irene Street. फुटपाथ के करीब दौड़ने वाली गाड़ियां सिर्फ आधे हिस्से तक जा सकती हैं, अगरचा आयरीन गली में दाएं जाविये के रुख का सामना करने से कबल इनकी रफ्तार बहुत तेज थी। Here a pram-wheeled cart like mine could demonstrate its sole advantage. यहाँ बच्चा गाड़ी वाले पहिए वाली गाड़ी अपना वाहिद फ़ायदा जाहिर कर सकती है। The traction of the rubber tires made it possible to negotiate the corner in some style. रोड पर पहियों की पकड़ ही मुमकिन बनाती थी इस कोने पर उसी तरीके से रास्ता तलाश करने की। I developed a histrionic lean over of the body and slide of the back wheels, which got me round the corner unscathed
leaving black smoking trails of burnt rubber. मैं बहुत ड्रामाई अंदाज में झुका और बहुत आराम से पिछले पहियों को खिसकाया और बाहिफाजत इस कोने से निकल आया, पीछे जलती रबड़ का स्याह धुआं छोड़ते हुए. Mastery of this trick saved me from being relegated to the ranks of the little kids, than which there was no worse fate. I had come to depend on being thought of as a big kid. इसी चाल की महारत ने मुझे छोटे बच्चों की सफ में शामिल होने से बचाया, जिससे ज़्यादा बदकिस्मत वाक़या कोई न था. मैं इन्हसार करने आया था, लेकिन एक बड़ा बच्चा समझा जाने लगा. Now students, paragraph number 2 is complete. In paragraph number 2, the writer is telling that race to is easy and which streets the race is taking place, but he is telling about a corner turn which is very dangerous. Now we will open page number 18 and paragraph number 3. The Irene Street corner was made doubly perilous by Mrs. Branthwaite's poppies. ये आयरीन स्ट्रीट का कोना दुगना खतरनाक हो जाता था मिसेस ब्रैंथवेट के पॉपीज की वजह से. स्टूडेंट्स, व्हाट आर पॉपीज? पॉपीज आर हर्ब्स, एक ख़ास किस्म के पौधे हैं जो लगाए जाते हैं और ये हर्ब्स में आते हैं और इनके बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल किए जाते हैं. मिसेस ब्रैनवेट्स इनहेबिटेड द हाउस ऑन द कॉर्नर. मिस्टर ब्रैनवेट्स रहाइश पजीर थीं इस घर में कोने पर. शी वॉज अ नोन विच whom we often persecuted after dark by throwing gravel on her roof. वो एक मशहूर उनको चुड़ैल के नाम पर वो मशहूर थी और हम अक्सर उनको सताया करते थे रात को अंधेरा होने के बाद उनकी छत पर छोटे पत्थर फेंक कर. It was widely believed she poisoned cats. और ये बहुत ज़्यादा माना जाता था कि उन्होंने बिल्लियों को जहर दिया था. Certainly, she was a great ringer up of the police. लेकिन यकीनन वो पुलिस को कॉल करने में सबसे ऊपर थी. In retrospect, I can see that she could hardly be blamed for this. अगर मैं उनके माजी पर या गुज़श्ता ज़माने पर नज़र डालूं तो ये कह सकता हूँ कि उन्हें बमुश्किल ही इल्ज़ाम दिया जाएगा इस चीज़ का. But her behavior seemed at the same time like irrational hatred of children. लेकिन उनके दिल में एक बेतुकी और खिलाफ अकल बच्चों के लिए नफरत थी जो कि उनके रवैये से नजर आती थी. She was a renowned gardener. वो एक मशहूर बागवान थी. Her front yard was like the cover of a seed catalog. उनका सामने वाला सहन ऐसे लगता था जैसे कि बीजों की फहरिस्त. Extending her empire. उनकी सल्तनत में तोसी करते हुए. She had flower beds even on her 2 front stripes. उनके घर के सामने वाली 2 पट्टियों पर फूलों की क्यारियां थीं. One on the Sunbeam Avenue side and the other on Irene Street side. एक थी सन एवेन्यू स्ट्रीट की गली में और दूसरी थी आयरीन स्ट्रीट की तरफ. That is on both outside edges of the famous corner. और ये दोनों थे बिल्कुल बैरूनी किनारे पर उस मशहूर कोने के. The flower beds held the area's best collection of poppies. उनके फूलों की क्यारी में इलाके के सबसे बेहतरीन पॉपीज का मजमुआ था. She had been known to phone the police if even one of these was illicitly picked. और वो मशहूर थी पुलिस को बुलाने में अगर उनके किसी भी एक पौधे को भी गैर कानूनी तौर पर तोड़ा जाता था. So students, in paragraph 3 we have completed. Let's move towards paragraph number 4. At the same time I am talking about Mrs. Branwaite's poppies were all in bloom. और इस वक्त जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त मिसेस ब्रैनवेट के पौधे
पूरी तरह से खिले हुए थे। It was essential to make the turn without hurting a single hair of a poppy's head. और ये बहुत ज़रूरी था उस वक्त उस मोड़ को मुड़ना बगैर नुकसान पहुँचाए किसी एक भी पौधे को। Usually when the poppies were in bloom, nobody dared make the turn. आमतौर पर जब उनके पौधे बिल्कुल खिले हुए होते तो कोई भी हिम्मत ना करता उस मोड़ को मुड़ने की। I did, लेकिन मैंने की। Not out of courage, हिम्मत के साथ नहीं, but because in my ponderous car there was no real danger of going wrong, क्योंकि मेरे इस वजनी गाड़ी में कोई भी खतरा ना था गलत जाने का। I should have left it at that, मुझे उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। But got ambitious, लेकिन मैं और मेरे हौसले बुलंद हो गए। One Saturday afternoon when there was a particularly large turnout, एक हफ्ते की दोपहर जब वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, I got sick of watching the ball race carts howling to glory down the far side. मैं बीमार पड़ चुका था इन बाल रेस यानी कि बाल रेस वाले पहियों वाले गाड़ियों की चीखों पुकार सुनकर दूर से। I organized the slower carts like my own into a train. मैंने जोड़ा आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों को जैसे कि मेरी अपनी एक ट्रेन की सूरत में। Every cart except mine was deprived of its front axle and loosely bolted to the cart in front. हर एक गाड़ी सिवाय मेरी के महरूम हो चुकी थी अपने फ्रंट एक्सल से और उनको एहतियात से जोड़ा गया था सामने वाली गाड़ी से। The whole assembly was about a dozen carts long. ये पूरा मजमुआ तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियों का था। With a big box cart at the back, और एक बड़े डब्बे वाली गाड़ी के साथ जो सबसे आखिर में लगाई गई थी। I was the only one alone on his cart. सिर्फ मैं वाहिद था जो अपनी गाड़ी पर अकेला था। Behind me there were 2 or even 3 to every cart until you got to the box cart which was crammed full of little kids. मेरे पीछे हर एक गाड़ी में तकरीबन 2 या 3 लोग थे जब तक कि आप सबसे पीछे वाले बॉक्स कार्ट यानी कि डब्बा गाड़ी में पहुँचें जो छोटे बच्चों से भरी हुई थी। Some of them so small that they were holding toy koalas and sucking dummies. और उनमें से कुछ बच्चे इतने छोटे थे कि उनके हाथों में खिलौना कोआलास थे। स्टूडेंट्स, कोआला इज़ अ टाइप ऑफ अ बियर जो कि बहुत छोटा होता है। उसके अलावा और वो चूस रहे थे अपनी चूसनियाँ। दे वर सो लिटिल। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पैराग्राफ नंबर 4.